Good morning everyone. Class 11 subject business study. Myself Jitendra Gupta. I teach you subject accountancy as well as a business study. In the previous video discuss the subject accountancy class 11 and discuss the following contents of accountancy. Okay everyone. And after 12th कॉमर्स ऑप्शन डिस्कस किए थे हमने, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ सीए फाउंडेशन. दिस एग्जाम इज कंडक्ट बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. इन दिस सीरीज सेकंड मेन ऑब्जेक्शन इज सेकंड मेन कोर्सेज इज CS फाउंडेशन कंपनी सेक्रेटरी. ओके, दिस एग्जाम कंडक्ट बाय ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ Company Secretary of India. Okay everyone. After 12th, you know that BBA, BCA, traditional course may be BCom, right? So professional course like as a BBA plus MBA, integrated course. Yeah, only BBA. BBA is a 3-year course, Bachelor of Business Administration, right? BCA, Bachelor of Computer Application. So commerce वालों के लिए basically बहुत सारे करियर ओरिएंटेड अप्रोचेज हैं. CA या CA फाउंडेशन लेके भी आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं. CFA चार्ट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं. ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्कर अकाउंट का भी कोर्स हम कर सकते हैं. या फिर आगे आफ्टर ग्रेजुएशन आप BBA या BCom करने के बाद गवर्नमेंट के जो SSC के जरिए एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ पोस्ट कॉमर्स के लिए रिक्रूट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, राइट. तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप क्लास 11th में मैथ भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैथ आएगा आपका पोर्सन. तो आप क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑफिस क्या करते हो, अपनी प्रैक्टिस को रनिंग में लेके आ सकते हो. तो आपके पास बहुत सारे कैरियर ओरिएंटेड ऑप्शन हैं इन अ कॉमर्स सेक्शन. ओके एवरीवन. सो टुडे वी विल डिस्कस about the subject business study and its content here chapter wise. Okay, so business study is classified in two parts, part A and part B. Business study classified in two major part A and part B. Okay everyone. So बेटा आपको क्या करनी है, NCERT बुक परचेज करनी है, NCERT. Okay, this is applicable only on CBSE as well as RBSE. RBSE में क्या कर दिया, सेम इस NCERT पैटर्न को अपग्रेड कर दिया है. सो आप चाहे CBSE स्टूडेंट हो या RBSE स्टूडेंट हो, बेटा आप लोगों को NCERT बुक परचेज करनी है. ओके, इफ यू बाय अ प्राइवेट ऑथर बुक, तो बिजनेस स्टडी क्लास 11, ओके, ऑथर संदीप गर्ग एंड पब्लिकेशन धनपत राय पब्लिकेशन. सो दिस परचेज एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या this particular platform. Okay, this is a private author book, otherwise NCERT book is sufficient for your study. Okay everyone, so discuss the part A in a business study. Point number first, yeah, chapter number first, evaluation and fundamental of business. Evaluation and fundamental of business. So इसमें आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस का इवैल्यूएशन, हाउ टू इवैल्यूएशन कैसे हुआ, और उसके रिगार्डिंग इसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं. कि बिजनेस जो इवैल्यूएट हो रहा है, कब इवैल्यूएट हुआ, किस ईयर में इवैल्यूएट हुआ, और इसकी उत्पत्ति या कैसे, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है. बेसिक फंडामेंटल्स मींस जिस पर डिपेंड करते हैं कि बिजनेस की प्रैक्टिसेस, राइट, वो सभी पॉलिसीज, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस को हम वन बाय वन चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे. Point number 2, form of business organization. Different type form of business organization. Okay, different type of forms. Single businessman या sole proprietor. Partnership form means 2 or 3 person are engaged as a partnership working. So देखिए forms of business environment. Forms of business environment में focus on screen. Okay, single businessman,
ओके, या सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, या 2 or 3 persons come together as a partnership firm. Okay, second is इसमें partnership firm. Okay, आगे public company, private company. So different types of firm discussed in our chapter number 2. First, in the businessman, या sole proprietorship. Second, partnership firm. 2 or 3 person come together with a startup as a partnership firm, and act applicable in a partnership firm 1932, and act is a partnership act 1932. Public company, private company, cooperative society, so different types of firm. Okay, private, public and global enterprises means business work at private level, at public level, at a global level means MNCs, beyond the boundaries of foreign branches. Business services, the different types of business services in a chapter number 4. So देखिए चैप्टर नंबर 4 में different types of business services हैं आपकी, e-banking है, postal services है, insurance services है, right, different types की banking services हैं. तो इसमें क्या है बेटा, business services में क्या है, different types banking services, different types of insurance services, different types of e-commerce services. नेक्स्ट है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. आपके पास पेमेंट करने के क्या क्या चैनल है, डिजिटल पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट है, वाया एटीएम कार्ड है, वाया क्रेडिट कार्ड है, वाया डेबिट कार्ड है, राइट. ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मनी. सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है, राइट, बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को बिजनेस करते टाइम उस सराउंडिंग एरिया को अफेक्ट ना करे या कोई इलीगल एक्टिविटी ना करे, जिससे कि उस सोसाइटी के लोगों को डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़े. मीन्स उसे बिजनेस एथिक्स, बिजनेस नॉर्म्स, बिजनेस रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो discuss in a part first include a 6 chapter combination. Part B, okay, source of business finance. Source of business finance means आपने बैंक से लोन लिया, आपने शेयर मार्केट से शेयर इशू किए, राइट, आपने डिवेंचर इश्यूज किए, राइट. शेयर्स में भी 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, डिवेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, राइट. ओके, सो इंक्लूड अ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन चैप्टर 7, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज. छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज में क्या होता है, देखिए इसमें स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज में आप नोटिस करोगे कि देखोगे इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्मॉल एक्टिविटी ऑपरेट होती है. मीन्स कोई ऐसा वर्क करता है, एंटरप्रेन्योरशिप, एक वर्ड आएगा आपके एंटरप्रेन्योरशिप. कोई पर्सन एज अ एंटरप्रेन्योरशिप वर्क कर रहा है, राइट. सो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे. एंटरप्रेन्योर्स में क्या होता है, आपको एज अ एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहे हो, कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जा रही है. सब्सिडीज मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फाइनेंशियल हेल्प. ओके, इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड में अगेन ट्रेड की प्रैक्टिसेस अवेलेबल है. लोकल एरिया में आप ट्रेड कर रहे हो, अर्बन एरिया में ट्रेड कर रहे हो, सिटी में ट्रेड कर रहे हो, स्टेट में ट्रेड कर रहे हो, राइट, कंट्री टू कंट्री ट्रेड कर रहे हो. ओके, एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल बिजनेस. सो दिस इंक्लूड बियॉन्ड द बाउंड्रीज. आप किसी फॉरेन कंट्री से डील कर रहे, मीन्स बिजनेस डील विद इन अमेरिकन बिजनेसमैन एंड इंडियन बिजनेसमैन या चाइनीज बिजनेसमैन या रशियन बिजनेसमैन. ओके, सो
part number B consists 7, 8, 9, 10 means 4 chapters are included in a business study. Okay everyone, so बेटा आपको इसके रिगार्डिंग क्या करनी है, NCERT की बुक परचेजेस करनी है. ओके, बाय बुक NCERT. ओके एवरीवन. और अगर आप किसी प्राइवेट ऑथर की बुक परचेज करना चाहते हैं, सो यू बुक बाय ऑनलाइन बिजनेस स्टडी, ऑथर संदीप गर्ग, पब्लिकेशन धनपत राय पब्लिकेशन. ओके, तो आज हमने आपका जो क्लास 11th है, इस जो सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी जिसको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, उसके रिगार्डिंग हमने आपके कंटेंट डिस्कस किए हैं. सो ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट क्लास में मीट आउट करते हैं. सो थैंक यू. ओके, गुड लक और सेफली रहिए आप अपने घर पे. मास्क वेयरिंग करिए अगर आप बाहर पे जाते हैं. ओके.